that I welcome our auspicious guest, Professor Umesh Kumar Kalra, sir. Welcome, sir. Welcome Thank to you so much. IMT. Thank you. Thank you. And Thank you. uh, and the topic as is very important. So no doubt about the session is going very important. I heartily welcome my all deans, Chairperson Dr. Biba, Professor Amit Rai, Dean Dr. Abhanan, Dr. Bhatia, and all head of the departments and faculty members. Last but not least, my dear students are here. All my students of BPA and BCom. The session is going to be a very interesting and no doubt Kalra sir has a very vast experience, especially on this is very great experience. So initiatives, when we talk about the initiatives, a lot of governments have taken the initiatives last from 10 to 20, 30, 40 years. In every decade, if we see in 70s, the entrepreneurs different, 80s again different, 90s again different, and in 2000. And after the initiative of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, this has now become a buzzword. So not taking much of the time, once again, thank you everybody. Thank you so much, Director Sir, for welcoming our guests. Now I forward mic to Professor Umesh Kalra ji Yeah. to share their experience to our students. So thank you very much for giving me the opportunity to talk to the students, and I feel really pleasure to talk to my dear friends today on a very important topic. I think not only important but also very relevant nowadays. Dear friends, I will share with you some examples. The recent news that you must be aware about. Yesterday, near Tonga, Tonga is a small island near Australia in Pacific Ocean. There was a volcano. मालूम है आपको इसके बारे में? एक कल वॉल्केनो फूटा. एक क्या इसका रेलिवेंस आपको बताऊंगा. एक वॉल्केनो फूटा एंड ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि इट इज इन पैसिफिक ओशन, तो ऑस्ट्रेलिया में एक अलर्ट जारी किया. एंड नॉट ओनली द टोंगा वाज कंप्लीटली कवर्ड विद वाटर. टोंगा, a very small island whose population is just 1 lakh, was completely covered with water. और जो धुआं उठा है, जो गैस उठी है, गैस ने, जो गैस की लेयर बनी, उसने सूरज की रोशनी को पूरा कवर कर लिया. विद द रिजल्ट टेम्परेचर केम डाउन. आई विल स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ. कॉकटेल यूज करूंगा टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. तो जब धुआं उठा तो इतने किलोमीटर ऊपर, तो सूरज की रोशनी को जो कवर कर लिया, तो टेम्परेचर केम डाउन. डियर फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड? You see, Alaska in America, Alaska is around 11,000 kilometers away from Tonga. तो वहां तक इसकी आवाज आई. You shall be shocked to know. वहां तक इसकी आवाज आई. Not only this, Japan, which is around 10,000 kilometers away from Tonga, वहां पे अलर्ट जारी किया. सुनामी, जब किसी समुद्र में जब वॉल्केनो फटता है, उसको सुनामी बोलते हैं. You see, Japan issued red alert कि पानी आने की चांसेस हैं. न्यूजीलैंड, which is around 25 kilometers away, कि पानी आने के चांसेस हैं, तो वहां पे अलर्ट जारी हो गया. नॉट ओनली दिस, पीरू इन साउथ अमेरिका, विच इज अराउंड 11,000 किलोमीटर अवे, वहां पे ऑयल के टैंकर्स पड़े हुए थे, वो सारे उल्टे हो गए. सारा पानी में, सारा ऑयल जो जितना भी था वो सारा पानी में चला गया. फाइन, एक कल की न्यूज है. अब इसका क्या रेलिवेंस आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में. यू सी, नंबर 2, वी आर नाउ मैन्युफैक्चरिंग ब्रह्मोस मिसाइल, विच इज ए टेरर इन द वर्ल्ड. वन ऑफ द मोस्ट एडवांस मिसाइल, एक क्रूज मिसाइल है जो कि जमीन के साथ साथ चलता है. फाइन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर इट विद द हेल्प ऑफ रशिया इन लखनऊ अंडर मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट. ये आपको मालूम होगा. द रेंज इज अराउंड 290 किलोमीटर्स. वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर द ब्रह्मोस मिसाइल ऑफ द रेंज ऑफ अराउंड 500 किलोमीटर्स. लखनऊ में बनेगा. डियर फ्रेंड, इतना टेरर है इसका. वियतनाम, फिलीपींस, फाइन, and other country, Indonesia, Brazil, Argentina, they have decided to purchase our missiles. We want to purchase missiles from India. अपना बजट allocate कर दिया कि this much budget we are going to spend on the purchase of the missile from India. Number 3, ये कल की न्यूज आपको बताते हैं. वो न्यूज क्या है? Our Boeing 777, Japanese Boeing 777, UAE Boeing 777 have refused to go to America, have refused to land in American airport because वहां पे 5G नेट इंटरनेट वहां पे इंस्टॉल हो रहा है. अब फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो रहा है. उसके वजह से जो आवर एयरप्लेन्स, जो बोइंग 777 है,
जापान वालों ने और दूसरी कंट्रीज वालों ने दे हैव रिफ्यूज्ड टू लैंड इन अमेरिका। ये मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज एज अ स्टूडेंट यू मस्ट नो व्हाट इज हैपनिंग नियर अराउंड यू। आपके आसपास चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, एंड दैट विल what is stored in your future will be decided by today. So you must know what is happening today so that you can decide what you are going to become tomorrow. Dear friends, I hope and I am very confident every one of you wants to become an entrepreneur and the employment creator. Now, can you tell me how many of you approximately would like to become entrepreneur and create employment opportunities? Yeah, please tell me in voice. जरा बोल के बताइए, तब मजा आएगा मेरे को, because I want to make this session very, very interesting for you, very interesting, informative for you. Now, can you see the slide? Can you see the slide? Yes, friends? No, sir, yet it is not visible. Oh, let me see. What is the problem? So there is option of arrow just near the mic. You can share from there. Just near the mic. Yeah, let me. जहाँ leave लिखा होगा ना उसके just बगल में. मैं देखता हूँ. क्योंकि ये नया एक सॉफ्टवेयर, हाँ ये नया प्लेटफॉर्म है, हाँ तभी दिक्कत आ रही है मेरे को. राइट साइड से नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है. डी में, इसमें डी लिखा है, एनपी लिखा है, डी लिखा है, डीएस लिखा हुआ है. तो इसमें ऊपर मुझे स्लाइड इसमें, अच्छा वो नहीं एकदम टॉप राइट पे देखें. टॉप राइट पे लिखा हुआ, यस टॉप राइट पे लीव है, उसके बाद एक अपसाइड एरो है. हाँ शेयर उस पे लिखा हुआ क्लिक करें, हाँ उस पे क्लिक करें, फिर आप शेयर में आप ठीक है ना, उसके बाद आपको ब्राउज योर कंप्यूटर्स पे जाके उस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड वहां से शेयर हो जाएगी. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ. कैन यू सी नाउ? नॉट येट. नॉट येट. शेयर का मैंने बटन दबा दिया है. जी जी, फिर एकदम नीचे जाइए, उस पे ब्राउज माय कंप्यूटर्स लिखा हुआ है. ब्राउज माय कंप्यूटर. ब्राउज माय कंप्यूटर. हाँ उस पे क्लिक करें. ब्राउज माय कंप्यूटर. आई एम ट्राइंग टू लोकेट ब्राउज माय कंप्यूटर. एकदम नीचे लास्ट बॉटम पे है. ब्राउज माय कंप्यूटर. आई एम नॉट एबल टू सी इट. ब्राउज माय कंप्यूटर. नो फाइल वो है, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड है, विंडो है, जहाँ पे विंडो लिखा होगा उसी के नीचे आइए. नहीं मिल रहा है तो नो इशू, आप हमसे शेयर कर ले, हम यहाँ से शेयर कर लेंगे आपको. चलिए, मैं फिर आप मुझे मेरे होस्ट बन जाइए, तो आप शेयर कर लीजिए, मैं आपको शेयर कर देता हूँ. हाँ आप मुझे स्लाइड कैसे शेयर करेंगे, मेल पे करेंगे या इस पे करेंगे? मैं आपको मेल, 1 मिनट में मेल कर देता हूँ. ये जो वीवा बैंक को जो मेल आया, मैं आपको वही मेल दे देता हूँ. जी जी, उसी पे कर दें आप मुझे. Just give me a second. Just give me a second.
मैंने भेज दिया है. It will take just one more second to reach you. थोड़ा नेट भी स्लो चल रहा है. I don't know. हाँ सर, कोई बात नहीं, कोई बात Yes, sir. नहीं. It's तो मैंने भेज Same दिया. here. I've sent it. Okay sir, I'll just. मिला आपको? सर अभी तक तो नहीं मिला. यहाँ तो चला गया है. अभी तक नहीं मिला है. आई एम चेकिंग ऑन माय या हाँ सर, मिल गया है. ठीक. बस मैं अभी डाउनलोड करके आपको. You kindly become my co-host and then I will bother you. No sir, no issue, no issue. It's my pleasure. Yeah. न्यू प्लेटफॉर्म है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है. कोई बात नहीं. वहाँ से शेयरिंग पे जाऊंगा तो एक मिनट खोल लीजिए. Loading this page. Yeah, in the meantime, I will talk to my students. Yes, dear sir, students, yes, sir. Yeah. Yes. Sorry, since it is a new platform, so it takes time Is to it learn. I'm sorry. Is it visible to everyone now? Yeah. yes, ma'am. Yes, sir. Yes. Thank you. But kindly should switch on to the PowerPoint presentation, PowerPoint mode. अभी तो slide उसमें तो अभी उसमें नहीं आया. तो PowerPoint mode पे shift करिए, please. Is it okay? अभी तो दिख नहीं रहा है, कुछ छोटा है बहुत. तो पूरा स्क्रीन पे लाना पड़ेगा इसको. Anyway, but I will handle this, no issue. So can everyone see the slide now? Yes, friends. Can you all see? चलिए. तो आपको मैंने ये बताया कि till you are aware about the opportunities and what the government is doing for you, what the country is doing for you, what the world is doing for you, you cannot therefore make your career. So we are doing so many things. I want to share with you as to how you can enrich your career, how you can become an entrepreneur and become the employment creator. So dear friends, to kindly show me the slide. Dear friend. The slide show. Just a minute, Slide is not seen. ठीक है. So dear friends, if you want to become an entrepreneur, but till now I have not got any response from you whether you want to become an entrepreneur or not. आप बताइए मेरे को कि आप बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते. अगर बनना चाहते हैं तो think like an entrepreneur. That I want to become an entrepreneur. I will show you many examples that students like you, even younger to you in age, they have become very big entrepreneurs just by thinking that they can do wonders. Think that you can do wonders. First of all, dear friend, try to create an idea. Remember these two lines. Madam, next please. Remember these two lines. These two lines can change your life. Nothing is easy if you are lazy. Everything is easy if you are crazy. Think of an idea and become crazy. I want to become this, then become crazy. I want to become an entrepreneur and be after that. Think of an idea. Think of a problem. Then the problem will give you the idea. तो एक प्रॉब्लम आनी जरूरी है, उसके बाद एक आइडिया आएगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी शेयर विद यू वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. यू सी दिस मैन ओला, द ओला मैन जिसने ओला क्रिएट किया. अभी इसका मैं आपको दिखाऊंगा. जब ओला क्रिएट किया, ही वाज गोइंग इन राजस्थान समवेयर फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट. ऑन द वे व्हाट हैपेंड, द टैक्सी खराब हो गया, इंजन खराब हो गया, गाड़ी रुक गया. तो देन ही वाज वरीड कि आगे कैसे जाऊं. देन दोनों के बीच में, ड्राइवर और दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ, बहुत तगड़ा आर्गुमेंट हुआ. दिस मैन वाज थ्रोन आउट ऑन द रोड इन द मिडवे.
Then he decided कि I am going to create a convenience for the future, for the common man. इतना सस्ता कर दूंगा that the people will not require taxi at all. Today we don't find taxi stand. This man started Ola, operation level arrangement. आपको मालूम है इसके बारे में? This man started Ola. अगर ये प्रॉब्लम नहीं आती तो उसको आइडिया नहीं आता. तो आइडिया आने के बाद he thought of becoming an entrepreneur. You see, and today he is very successful. Ola is run not only in the country but around the world. Idea. So what PM has said, the PM said that once you think of an idea, then be mad after that. Take up one idea. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बार बार पढ़िए. Make that one idea your life. Think of it, dream of it, live on that. चाहे आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, चाहे आपने IAS ऑफिसर बनना है, but once you decide, stick to it. Think of that, become passionate, become crazy after that. आपके पूरे बॉडी का हर पार्ट सोचे कि मुझे कुछ करना है. जब तक ये पैशन आग आपके अंदर नहीं होगी, you can't become entrepreneur. And I will share with you many examples. ये जो आग अंदर थी, पैशन था, that passion converted the young blood of the age of 16, 15 entrepreneur. Dear friend, next please. Next slide, please. Next slide. Yeah. Did you know that idea can change the life? Yes, idea can change the life. अब प्रॉब्लम ये है कि आइडिया कहां से आएगा. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. Israel and India got independence virtually at the same time. India achieved independence in 1947. Israel attained independence in 1948. Today, Israel is much ahead. What Israel realized in 1948, 1950s, India has realized today. ये किसकी बात कर रहा हूं? Israel wanted to invite ideas. कि आइडिया चाहिए हमारे को. You bring the ideas and we shall finance it. आप आइडिया लेके आओ, हम इसको फाइनेंस करेंगे. Because many people have got many ideas, but with a view to convert the ideas into the entrepreneurship, they require to finance. The government of Israel finance those ideas, dear friend, not only within the country, but even from across the world. One letter was even received in India. When I was in government of India, even I got one copy from Israel. If you want to come to Israel, come here, do something. We shall award you, we shall reward you. Dear friends, today we have realized this. In the case of our country, the government has started many schemes for you. Many schemes. अभी एक एक करके बताऊंगा. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम्स है जिसको कि आप अवेल कर सकते हो. Not only government of India, but even in the private sector. Today there is a flow of funds. Just come, go there, go to any bank, go to any private sector, and that is called venture capitalist. You go to any venture capitalist. If they like and love your idea, they will finance you. So therefore, the problem is how to create an idea. Dear friends, idea आपको आएगा एक प्रॉब्लम से. अगर एक प्रॉब्लम आती है, जैसे आपके जो ओयो वाले हैं, own your own, इसको प्रॉब्लम आई थी. This boy wanted to take admission for coaching classes in Rajasthan. You see, he wanted to join IIT. कोचिंग करने के लिए गया. This poor chap could not get any accommodation. इसको वहां पे जगह नहीं मिली. तब he faced a problem. Then he got an idea कि मैं एक काम शुरू करूंगा. उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी. He is a college dropout. Then he thought of an idea and started OYO. Now this OYO is one of the top companies, not only in India. Now it is even across the world. पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में OYO आजकल चलता है. This boy is just 24 years old. But when he thought of an idea, he was just 19 years old. 19 साल की एज में he came across a problem. But उस प्रॉब्लम को उसने आइडिया में कन्वर्ट किया. ये आप भी कर सकते हैं. Dear friends, think of an idea, not tomorrow but today, so that you can become entrepreneur tomorrow. Next please. Next slide please. Yes. उसके लिए पैशन होना बहुत जरूरी है. क्रेजी होना बहुत जरूरी है. It may be any goal. क्रेजी जब तक आप नहीं होंगे, पैशन नहीं होगा. You see Dhirubhai Ambani. Dhirubhai Ambani, the father of Mukesh and Anil Ambani. He is a school dropout. स्कूलिंग भी पूरी नहीं की. He was from गुजरात. एक गुजरात में एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया था. He was born there. उनके 4 बच्चे थे. स्कूल में पढ़ते थे. फैमिली बड़ी गरीब थी. देन उसने अपना स्कूल छोड़ के काम शुरू किया और एक बर्मा शेल की कंपनी थी. बर्मा शेल जो ऑयल प्रोड्यूस करती है,
ज्वाइन करके उनके पार्ट्स को बेचना शुरू किया। यू सी, यू शैल बी शॉक्ड टू नो, जो सिल्वर के सिक्के होते थे उनकी वैल्यू कम थी। उसके दिमाग में आइडिया आया धीरूभाई अंबानी के, इन सिक्के को मैं पिघाल के उसको बेचूंगा। यू सी, जब शातिर दिमाग होता है तो ऐसे सोचता है। तो सिल्वर के सिक्के इकट्ठे करके उनको वो मेल्ट करके मार्केट में बेचते थे, उसके वजह से इसको ज्यादा प्राइस मिलता था। देन ही जॉइंड ए पेट्रोल पंप, बट दिमाग कहीं और था। पेट्रोल भर रहा है गाड़ी के अंदर, पर दिमाग कहीं और था। नाउ ही हैड ए बर्निंग डिजायर टू डू समथिंग बिग, बर्निंग डिजायर। टुडे यू नो रिलायंस कंपनी, एक कंपनी चालू की 1970s में। टुडे इट इज द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया and one of the biggest in the world. It is only because of the idea that led to such a big company. You see, now let me share with you some extremely inspiring stories which may inspire you, which may create that kind of fire in you. That is going to create, I am sure about it. Madam, next slide, please. Yeah. And you shall be surprised. ये सारे के सारे ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं। ये जितने बड़े बड़े स्टार्टअप सारे हैं, उसमें जो लार्ज नंबर है वो ग्रेजुएट्स का है और दे आर स्कूल ड्रॉप आउट्स। अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं। नेक्स्ट प्लीज। किशोर बयानी, इसके बारे में कौन नहीं जानता। ही वाज अ स्कूल ड्रॉप आउट, बट ही हैड अ बिग ड्रीम। ही स्टार्टेड बिग बाजार गेम। बिग बाजार फेम तो इसी का है। ही वाज ओनली ग्रेजुएट, बट ही वाज ग्रेजुएट थर्ड क्लास, थर्ड डिवीजन। ये पहले आपके जितने बड़े बड़े दुकानें थी बॉम्बे में, उसके बाहर एक साइकिल पे ये कपड़ा बेचता था। साइकिल पे कपड़ा बेचते बेचते इसके दिमाग में बड़ी बड़ी बातें आती थी। He always thought of becoming a big man. Then Big Bazaar came into being, dear friends. Only a graduate, that to third class. Kishore Bayani, today he has an asset of more than around 35,000 crores rupees. In Jeti Srinivas, he was only BCom, third class. He joined IAS. Passion था कि मुझे IAS में जाना है। He was only BCom third class. He retired as secretary from the Ministry of Corporate Affairs. He was only BCom. VK दुग्गल हर मीटिंग में बोलते थे कि मैं IAS हूं, पर मैं BA थर्ड डिवीजन हूं। खुल्लम खुला सबके सामने बोलते थे, I am BA third class. But today I am secretary. Secretary is the highest post of a ministry. He became secretary. He was NTFC chairman once upon a time. Dear friend, openly he used to admit that I am BA third class, but he qualified IAS. धीरूभाई अंबानी के बारे में बताया मैंने। He was a worker in a petrol pump, but a school dropout. इन सब के अंदर क्या था? एक डिजायर थी कुछ बनने की। वो डिजायर अगर आपके अंदर भी है तो आप भी इनमें से एक आराम से बन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Yes, please. Now let me share with you some interesting stories. Now this man, you shall be shocked to know, this boy मुकंदा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है। बीटेक कर रहे हैं चेन्नई में। फाइन, बीटेक कर रहे थे तो कॉलेज की कैंटीन में गए। ये चार दोस्त थे। दे वेंट टू कॉलेज कैंटीन एंड ऑर्डर फॉर डोसा। डोसे का ऑर्डर किया। डोसा टुक 25 मिनट्स। गुस्सा आ गया, भाई इतना टाइम क्यों लगा? उसने बोला कि सर क्या करें, डोसा बनने में टाइम लगता है, डिमांड बहुत ज्यादा है। 25 मिनट तक वेट करने के बाद डोसा खाया, पर दैट प्रॉब्लम, वो वेटिंग जो पीरियड था, एक आइडिया दिमाग के अंदर आ गया। मैं क्यों ना एक मशीन बनाऊं, एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, डोसा मेकर बनाऊंगा, फाइन, जिसमें 1 मिनट में 1 घंटे में 60-70 डोसा निकलेंगे। वो आइडिया मिला कैंटीन से। इन चारों ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की और एक डोसा मेकर मशीन बनाई, जिसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, DRDO, डिफेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री में कैंटीन होती है। उस कैंटीन में डोसा मेकर की डिमांड इतनी बढ़ गई है, नॉट ओनली हियर बट इन मलेशिया, जहां पे इंडियंस रहते हैं, मलेशिया, इवन सिंगापुर, वहां पे इसकी मशीनें जा रही हैं। वन मशीन कॉस्ट अराउंड 1.50 लाख। वन मशीन कैन प्रोड्यूस 60 डोसा पर आवर। ये कमाल है सिर्फ एक प्रॉब्लम का। अगर ये कैंटीन में नहीं जाते, डोसा की प्रॉब्लम नहीं आती, तो ये कंपनी नहीं बनती। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लीज। ये सारा मैंने बताया। इसके बाद टुडे दे हैव सोल्ड अराउंड 500 डोसा मशीन्स एंड पूरे वर्ल्ड में इनकी डोसा मशीन की डिमांड चल रही है। नाउ रितेश अग्रवाल, नेक्स्ट प्लीज। नाउ दिस बॉय ओयो, स्कूल ड्रॉप आउट। अगर इसको एडमिशन मिल जाता IIT में, इसको PG कॉम्पिटिशन मिल जाती, तो ओयो नहीं होता। इसको एकोमोडेशन नहीं मिली, तो आइडिया जनरेट हुआ ओयो के नाम से, ओन योर ओन
के नाम से इसने अपना काम शुरू किया, पूरे कंट्री में घूमा, बजट अकोमोडेशन क्रिएट करी, सो दैट ए कॉमन मैन कैन मूव अक्रॉस द कंट्री एंड अफोर्ड द बजट अकोमोडेशन। का मतलब होता है चीप अकोमोडेशन। तो ये क्या करते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स हैं वहां पे कुछ कमरे ले लेते हैं, उनको बजट अकोमोडेशन में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट ए कॉमन मैन like me and you can afford that accommodation. Now he is promoting tourism that way. Fine. तो ये इसकी उम्र इस समय 24 साल की है, पर जब ये आइडिया आया था he was only 19 years old. एक कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज भी ज्वाइन नहीं किया, स्कूल के बाद इसने ये काम शुरू कर दिया, रितेश अग्रवाल। फाइन, तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब मैं अगली, ये देखो, दिस बॉय, ए वेरी यंग बॉय, 16 साल की उम्र, तिलक मेहता, prove that there is no age barrier for invention and entrepreneurship. So my dear friends, आपके लिए भी कोई बैरियर नहीं है. It is just a matter of having the spirit of curiosity. Why, how to try something extraordinary in order to make a difference, dear friends. तो ये क्यों होता है, कैसे होता है और क्यों होता है? अगर ये चीज आपके दिमाग में आती है, why, when and what, you can easily become an entrepreneur. इस लड़के ने क्या किया, छोटा दिमाग है, सोच बड़ी है. What he did, ये जो आपके बॉम्बे में डब्बा वाला, ये पूरे वर्ल्ड में बड़े पॉपुलर है. डब्बा वाला इज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड. अगर लंच बॉक्स आपके पास 1 बजे आना है तो ठीक 1 बजे आपके पास वो आ जाएगा. तो इसने क्या किया, डब्बा वालों के साथ एक अरेंजमेंट किया कि जितने भी कोरियर होंगे, यू कैरी द कोरियर्स, फाइन, और कोरियर्स को आप डब्बे के साथ सप्लाई करें, फाइन. तो उसने अपना एक पेपर एंड पार्सल एक कंपनी शुरू कर दी. Today this company is very very popular in the entire country, paper and parcel के नाम से. And the boy is not even 20 years old. इसको 3-4 साल हो गए हैं. He is less than 20 years old. ये आपकी एज के हैं. आइडिया आया दिमाग के अंदर, तो कीप ऑन थिंकिंग, कोई ना कोई आइडिया स्ट्राइक करेगा आपको. आपको मैं एक और बात बताता हूं. आप सबने एक गाना सुना होगा, लो लेट मी टेक यू टू द फिल्म इंडस्ट्री. वन वेरी पॉपुलर सॉन्ग, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो. It was a hit song. This song was prepared in just 24 hours. The man was traveling in a bus. बस में घूमते घूमते he got an idea. Find a very smart lady बस में खड़ी थी. He offered a seat to her. सीट देके उसके दिमाग में आइडिया आया, चौधरी का चांद हो या आफ्ताब हो. He wrote a song immediately. Then called the music director कि एक गाना मैंने बनाया है, गाने के पीछे ये रीजन था, तो मैंने गाना बना दिया. तो 24 घंटे में गाना तैयार हो गया. एक आइडिया आया, आइडिया से उसने एक गाना क्रिएट किया. दैट सॉन्ग इज पॉपुलर इवन टुडे. दैट आइडिया इज द स्टार्ट ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर. नाउ टेक दिस एग्जांपल. 16 साल की उम्र है, 500 रुपए लिए थे अपने फादर से, ओनली 500 रुपीज. दिस बॉय बिकेम एंटरप्रेन्योर जस्ट बाय बोरिंग 500 रुपीज फ्रॉम हिज फादर फॉर बाइंग ए डोमेन नेम and started a building, एक वेब कम्युनिटी तैयार कर ली, which used to design aero modeling. तो एविएशन सेक्टर में एरो मॉडलिंग करते थे, एक वेब डिजाइन किया, उसके बाद इसने इसको बेचा एप्लीकेशन को, और बेचने के बाद he became so rich. आजकल ये इसका CEO बना हुआ है. You see the age of the boy is 16 years. He is the CEO of his company. The name is Rockstar Media. इनका काम क्या, क्रिएट करना, उसको बेचना. ये काम तो आप भी कर सकते हो. See these two boys, they are the youngest entrepreneurs in the country, perhaps India's youngest entrepreneurs, age 14 and 12-year-old. ये तो एज इनकी है. कंपनी स्टार्ट की, Go Dimensions. क्या किया, an application development unit they founded in 2011. अभी 10 साल हुए हैं, in their home, घर के अंदर चेन्नई में. Over the years they have developed 11 that are available on the Apple iPhone में मिलती हैं एप्लीकेशन से. आप गूगल करेंगे आपको सब मिल जाएंगी. ओपन द एप्लीकेशन, सारा मिल जाएगा आपको. एंड दे हैव बिकम सो रिच. ये तो आजकल IIMs अहमदाबाद में भी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं. नाउ दीज टू बॉयज आर इनवाइटेड इन मेनी कॉलेजेस एंड दे गिव प्रेजेंटेशन एज टू हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर. छोटे छोटे बच्चे हैं, पर क्या रीजन है, हाउ दे बिकेम एंटरप्रेन्योर. इनके अंदर एक डिजायर थी, डिजायर पैदा करो. फाइनेंस इज नॉट ए प्रॉब्लम. When these people can become an entrepreneur, you can also become. Fine. Think on that lines कि मुझे कुछ करना है. That time has come today कि मुझे कल के लिए कुछ करना है.
आज सोचोगे तो कल बनोगे। नेक्स्ट प्लीज। ये सारी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। नो दिस गर्ल दादी है और इसकी ये पोती है। लॉकडाउन में एक आइडिया आया, मार्केट बंद है, हम क्यों ना घर में बैठ के मोमो तैयार करें। 1000 रुपए, 2000 रुपीज, नॉट 1000, 2000 रुपीज से इन्होंने मोमो बनाने का सामान खरीदा। ओनली दे स्टार्टेड द बिजनेस फ्रॉम 2000 रुपीज एंड दे स्टार्टेड सप्लाइंग द मोमोज टू द नेबर्स एंड देन ओवरनाइट दे बिकेम सो पॉपुलर। 21 साल की लड़की है एंड दैट टू शी इज अ ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस। मदर के साथ और ग्रैंड मदर के साथ तीनों ने मिलकर अपने घर पे काम शुरू कर दिया। अब ये पूरी दिल्ली में विद द नेम ऑफ बोजूस किचन इट इज पॉपुलर। पूरी दिल्ली में ये काम एक घर में शुरू हुआ एंड दैट टू फ्रॉम 2000 रुपीज। इवन शहनाज हुसैन, आई थिंक इसके बारे में एवरीवन इज अवेयर। यस फ्रेंड्स, नाउ डू यू नो हर? हु इज शहनाज हुसैन? I want to listen from you, my dear friends. Are you participating, listening? Because this is meant for you only. I want one voice at least. Sir, that we have you to know. permit them because we have muted them. अरे आप कर दीजिए, आप इसको चलने दीजिए, कोई बात नहीं, आप इनको अनम्यूट कर दीजिए। Let them participate. Jiten sir, please unmute them. कर दीजिए। Let me see how do they participate and how much they participate. Because I want to listen from them. Okay, ma'am. जी सर जी। Now can I? Students, now you are unmuted and you can reply. Please reply. Are you listening? Do you know Shahnaaz Hussain? I am getting no response. शहनाज हुसैन तो बड़ी पॉपुलर है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बड़ी पॉपुलर है। अब इसके बारे में कहानी क्या है? हर फादर वाज ए कर्नल, नॉट इवन कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल। शी बोरोड सम मनी फ्रॉम हर फादर, 20,000 रुपीज, कि मुझे ये काम शुरू करना है। और काम शुरू कहां से किया? एक गैराज से। एक कार का गैराज इसने रेंट पे लिया और कार गैराज से काम शुरू किया। टुडे शी इज नोन इन द एंटायर वर्ल्ड। इच्छा थी करने की कुछ। मैं स्लाइड्स हैव गॉन। आई थिंक वीडियो इनके सामने आ गया है, इसके सामने वीडियो आ गया है, स्लाइड पीछे चली गई है। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स, आर यू लिस्टिंग? तो इफ यू आर लिस्टिंग तो आई शैल बी हैप्पी इन केस यू रिस्पॉन्ड। यस प्लीज, पूछिए। या बोलो बोलो, यू वांट टू से समथिंग? बट एनीवे, नेक्स्ट स्लाइड इज, ये जितने भी बड़े बड़े आजकल चल रहे हैं, या आपके जैसे आपका फ्लिपकार्ट है या इवन फेसबुक, ये भी रात को ये सो रहे थे अपने कमरे में, सोते सोते दिमाग में आया कि ये मैं काम शुरू करूंगा। He thought on that lines. Now this boy, सुमित शाह, अपने डैडी के दुकान पे काम करता, स्टोर में काम करता था। फाइन, एप्लीकेशन डेवलप करी कि स्मार्टफोन से आप कैसे ई कॉमर्स शुरू कर सकते हैं। दुकानदारों को पता लगा तो दुकानदारों ने इनको अप्रोच करना शुरू किया। फाइन, धीरे धीरे दिस बॉय बिकेम वेरी पॉपुलर। हाउ यू कैन स्टार्ट द ई कॉमर्स बिजनेस ऑन द स्मार्टफोन? दिस बॉय started a kind of website with the name of the दुकान। सुमित शाह 20 years old, काम शुरू कर दिया। फाइन, ही इज ए बेसिकली हार्डकोर टेकी, कॉलेज भी नहीं गया और इनको इंटरेस्ट, तो दुकान नाम की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी एंड नाउ टुडे ही इज वेरी वेरी पॉपुलर। फाइन, ये एप्लीकेशन बेचते हैं। टुडे ही हैज बिकम करोड़पति जस्ट बाय स्टार्टिंग दिस इन ए शॉप। दुकान पे बैठ के काम शुरू किया अपने डैडी के साथ और एक एप्लीकेशन डेवलप कर ली दुकान के नाम से। आगे next please. But I shall be very happy in case you participate. I shall be too happy so that I feel encouraged that everyone is listening and participating and getting encouraged, of course. Now this man Ola, operation level arrangement, ये भविष्य नाम का लड़का had a terrible experience. रास्ते में इसको फेंक दिया। He was going from Bengaluru to Bandipur. इसको फेंक दिया। He got put up. मैं क्या करूं? That अगर वो उसको फेंकता नहीं तो ये ओला नहीं आती। He got an idea. फाइन, उसने उसको गुस्से में वेस्ट नहीं किया। उस टाइम को उसने आइडिया जनरेट किया और आइडिया जनरेट करके टुडे ही इज द मालिक ऑफ ओला व्हिच वी आर एंजॉयिंग। फाइन, टुडे एवरी टॉम डिक एंड हैरी, एवरी सेकंड पर्सन यूजेस ओला इन द कंट्री। इट इज अक्रॉस द 50 सिटीज, पूरे कंट्री में है और इट हैज गॉन इवन बियॉन्ड द बॉर्डर्स।
यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह चली गई है. This boy has become so popular now. Next please. This girl, सुभाश्री रे, होम बेकर है, घर में बेकरी शुरू की. घर में शुरू करते करते she has become so popular, अपनी कंपनी शुरू कर दी पीरियड बॉक्स के नाम से. फ्रॉम अपने घर से शुरू किया, पीरियड बॉक्स के नाम से एक बेकरी शुरू की. टुडे शी इज वेरी पॉपुलर एंड शी इज डिलीवरिंग अराउंड 20 ऑर्डर्स पर डे. 20 ऑर्डर डेली वो करती है. शी इज जस्ट 20 years old. दैट्स ऑल. नेक्स्ट प्लीज. 2-3 स्टोरीज और हैं, यू शैल एंजॉय देम. उसके बाद में एक मुद्दे की बात पे आऊंगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है. यस प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. आइडिया बता देना सर. आइडिया. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. या क्राफ्ट अफेयर. ये लड़की भी 18 साल की है. इसको हैंडीक्राफ्ट में बड़ा शौक था, तो शी स्टार्टेड ए कंपनी, इंस्टाग्राम पेज द क्राफ्ट अफेयर. ये पूरा क्राफ्ट का पूरा एक बकेट तैयार करती है और बास्केट तैयार करके इसको पूरे शहर में सप्लाई करती है. फाइन. शी सेज आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद द कलरफुल थिंग्स. तो शी स्टार्टेड ए कंपनी with the name of the craft affair. Now crafts are getting promoted. The handicraft, handlooms are getting promoted. Dear friend, एक आपको एग्जांपल देता हूं. If you come to दिल्ली, दिल्ली में एक जगह है नियर प्रगति मैदान. तो वहां पे एक एम्पोरियम है, नॉट एम्पोरियम, पूरा क्राफ्ट का पूरा एम्पोरियम है. पूरी वहां पे एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूरा क्राफ्ट एम्पोरियम है. तो आई टुक माई स्टूडेंट, around 40 students around 2 years back to that emporium. तो वहां पे जो क्राफ्टमैन है वो अपना बना के दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे. तो one girl in the group got an idea. तो she talked to me, सर मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है. उसने क्या किया, इन सबके नंबर लेके सबसे बात करके she said कि मैं आपके काम को प्रमोट करूंगी पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगी. टुडे she has become very successful. पूरे इंडिया में इनसे ऑर्डर करवा के इसको आगे पूरे कंट्री में सप्लाई करती है. शी गॉट एन आइडिया. तो अगर वो वहां नहीं जाती तो वो आइडिया नहीं आता उसको, तो टुडे शी वुड नॉट हैव बिकम सो सक्सेसफुल. तो व्हाट आई वांट टू से, आइडिया के बारे में सोचिए, थिंक कि मैं क्या कर सकता हूं. एवरीवन कैन डू समथिंग. एवरीवन हैज गॉट एंटरप्रेन्योरशिप. अंदर सबके एंटरप्रेन्योर है, उसको सिर्फ आपने जगाना है. जगाने के लिए सोचना पड़ेगा और उसके बाद आगे बढ़ने में कोई आपको रोक नहीं सकता है. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट प्लीज. ये लड़की जम्मू कश्मीर की है. इसने भी घर बैठ बैठ के काम शुरू किया. ये सिर्फ 19 साल की है. ये आपकी एज की है. इसने भी एज ए हॉबी इसको अडॉप्ट किया. उसके बाद ये लड़की पुलवामा कश्मीर की है. फाइन. एक जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट है, उसने ये काम शुरू किया कैलीग्राफी का. ठीक है. कैलीग्राफी मतलब है जिसमें आप बुनाई करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं, डिजाइन करते हैं कपड़ों के ऊपर. तो वो काम उसने एज ए हॉबी शुरू किया था. But that hobby became a business. She became very popular. Now today she is an entrepreneur in Jammu Kashmir. 19 साल की लड़की है. Next please. Next please. Yeah. अब इसको कौन नहीं जानता. इसकी जेब में 10 रुपए थे. This boy became the Malik of Paytm. The world over this company is so popular. This man started business only with 10 rupees. 10 रुपए. 10 रुपए हम चाय पे डेली उड़ाते हैं. Now this boy शेखर अग्रवाल, अभी विजय शेखर शर्मा became popular when he had 10 rupees in his pocket. खाने की हालत खराब थी, खाने के लिए पैसा नहीं था, तो प्रॉब्लम थी. और प्रॉब्लम ने क्या किया, इसको एक आइडिया दिया. टुडे ही इज ए यूनिकॉर्न, ए बिग कंपनी. अभी इसने मार्केट में अपने शेयर लॉन्च किए थे, आपको मालूम ही होगा. इसके शेयर मार्केट में कल क्रैश कर गए, ये भी मालूम होगा. बट एनीवे दिस कंपनी बिकेम पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड. कौन इसको यूज नहीं करता. Fine, everyone uses this. So एक आइडिया मिला 10 रुपए से. Now these 3 boys, नंदन, राहुल एंड श्री हर्ष, इन्होंने काम शुरू किया फूड डिलीवरी का. ये पूरे साउथ इंडिया में अब छा गए हैं. ये फूड डिलीवरी करते हैं स्विगी के नाम से. आपने कभी ना कभी ऑर्डर किया होगा और करते होंगे. ये स्विगी के जो मालिक हैं ये 3 छोटे छोटे लड़के हैं. इनका पूरे कंट्री में 300 जगह, 300 सिटीज में इनका काम चलता है. दिल्ली में तो हर दूसरा आदमी इसको ऑर्डर करता है, स्विगी को ऑर्डर करता है. इसके जो जनरेटर हैं वो 3 लड़के हैं. फाइन. साउथ में चलता है. अब तो साउथ के साथ क्या पूरे कंट्री में चल गया है. नाउ दिस मैन मेक माय ट्रिप. आपने कभी ट्रिप किया होगा, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो गए होंगे, आपने इनके सर्विसेज को अवेल किया होगा. नाउ दिस मैन
You shall be shocked to know कि कैसे शुरू हुआ. He wanted to sell a car of his wife. अपनी वाइफ की गाड़ी बेचने के लिए ये ऑनलाइन बैठे हुए थे. वो बैठे बैठे इनको आइडिया आया क्यों नहीं मैं अपनी कंपनी शुरू करी. तो he started his travel agency. गाड़ी बेचते बेचते ही got an idea. अपनी वाइफ की गाड़ी बेचते बेचते इनको आइडिया आया कि मैं ये काम शुरू करता हूं. टुडे दिस मैन इज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ट्रैवल एजेंट. इनके मार्केट में, शेयर मार्केट में इनके शेयर्स आपको मालूम होगा लिस्ट हो गए हैं. इस यही कंपनी है ट्रैवल एजेंसी जिसके शेयर मार्केट में शेयर लिस्ट होते हैं. इनके शेयर बिकते हैं मार्केट में. फाइन. ये कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं सर, 12 साल पुरानी है. बिग बास्केट के बारे में कौन नहीं जानता. ये 5 लोग हैं. फाइन. इन लोगों ने काम शुरू किया. टुडे बिग बास्केट इज पॉपुलर इन द एंटायर कंट्री. आजकल तो बहुत ज्यादा इसका डिमांड बढ़ गया है ऑन अकाउंट ऑफ द लॉकडाउन एंड अदर प्रॉब्लम्स. हरी इज वन ऑफ द ओनर्स told a publication that despite being in the business for 5 years, their core team still works on a 7 a.m. to 12:30 a.m. every day. काम तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पर एक बारी मेहनत कर लोगे उसके बाद there is no going back. पर ये जो इनके अंदर डिजायर थी वो डिजायर आपको भी पैदा करनी पड़ेगी. चलो मान लेते हैं डिजायर पैदा हो गई. आगे क्या होगा अब आपको आगे बताते हैं आप कैसे कर सकते हो. Want to become an entrepreneur? I hope now you can become an entrepreneur. तो आपको करना क्या है, कंपनी फॉर्म करो, एक कंपनी फ्लोट करो. Anyone can float a company. कंपनी फ्लोट करने के लिए आपने क्या करना है, 3 स्टेप हैं. हमारी कंट्री में we have got around 21 registrar of companies which are controlled by the Ministry of Corporate Affairs. Fine. आपने दिल्ली में या कहीं भी करना है, दिल्ली में करना है, हरियाणा में करना है, तो दिल्ली हरियाणा का ROC एक ही है, नेहरू प्लेस में. आपने जाना कहीं नहीं है. You have to apply online. कंपनी फ्लोट करो. फ्लोट करने का बड़ा आसान तरीका है. It can be private limited, it can be partnership, it can be any limited company. आपने क्या करना है, आइडिया को पहले क्रिएट करके एक कंपनी स्टार्ट करनी है. ठीक है. ऑनलाइन जाइए. You open the site of the registrar of companies of the concerned state. यूपी का तो लखनऊ जाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश का भोपाल जाना पड़ेगा और महाराष्ट्र के लिए बॉम्बे जाना पड़ेगा. साइट खोलिए. देन आपको उसमें फीड करना है कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी कंपनी का नाम क्या होगा, व्हाट नेम यू वांट टू कीप फॉर योर कंपनी. इट बी अवेलेबल, क्योंकि उस नाम की कोई और कंपनी कंट्री में नहीं होनी चाहिए. तो यू आर सपोज टू गिव 3-4 नेम्स. आप टाइप करोगे. नेक्स्ट प्लीज. देन आपने रजिस्ट्रेशन करना है. ये उसकी साइट है www.mca का मतलब होता है द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनका मतलब इंडिया. ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है. आपने इसमें एंट्री करनी है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, आपने एंट्री करनी है. उसके बाद जैसे जैसे आपको वो गाइड करेगी आप उसमें उसको फिलअप करते जाइए. दिस इज द सेकंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज टू ओपन द साइट विद द आइडिया, विद द नेम ऑफ द कंपनी. सेकंड स्टेप इज स्टार्ट फिलिंग अप. देन कीप योर आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्ट्रिक बिल, प्रॉपर्टी पेपर as a kind of the proof evidence that you stay at that particular place. ये साथ में रखिए, आपको फिल करना पड़ेगा. Then you are supposed to apply for director identification number. This number shall be applicable throughout your life. पूरी जिंदगी चलता है. ये नंबर एक बार मिल गया तो वो पूरी जिंदगी में चलता है. जहां भी डायरेक्टर बनोगे तो वो नंबर आपसे पहले पूछेंगे कि आपका डिन नंबर क्या है. इट इज कॉल्ड डिन नंबर. और डिजिटल सिग्नेचर आपके जनरेट हो जाएंगे. Then you are the director of a company. 3 सिंपल स्टेप है. द फर्स्ट स्टेप इज आपको मैंने बताया उसमें नाम आपके पास अवेलेबल होना चाहिए. आइडिया होना चाहिए कि मेरी ये कंपनी का नाम होगा, मेरी इतनी कैपिटल होगी और मैं ये काम करूंगा. ये आइडिया अगर आपको मिल जाता है तो आप कंपनी के मालिक, सिर्फ 1 घंटा बैठना है लैपटॉप के सामने, आप उसके मालिक बन सकते हो और अपना काम शुरू कर सकते हो. ये एक स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एनकरेज करेगी. इंडिया सीम्स टू बी हेडिंग टुवर्ड द गोल्डन ईरा ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. अभी जो मैंने मिसाइल का नाम लिया था, कौन सी मिसाइल थी, कैन एनीवन रिकॉल, जो वी आर मेकिंग विद रशिया's हेल्प, वो कौन सी मिसाइल थी, ब्रह्मोस. यू शैल बी शॉक्ड टू नो ब्रह्मो के जो इनपुट्स हैं, उनके जो इनपुट्स, जो ब्रह्मोस जिससे ब्रह्मो बनता है उसको सप्लाई करने वाले कौन हैं. ये बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं है, उनको सप्लाई करने वाले स्टार्टअप्स हैं. लाइक यू, जो आप जैसे बच्चे हैं. फाइन. उन्होंने उनके इनपुट को सप्लाई करने का काम किया है. द गवर्नमेंट इज नाउ इन्वॉल्विंग द स्टार्टअप्स एंड द प्राइवेट सेक्टर इन ए बिग वे. यू शैल बी शॉक्ड टू नो. शॉक क्यों,
इवन इन द डिफेंस सेक्टर गवर्नमेंट ने आपको बड़े लेवल पे इनवाइट किया है। जो हमारा टैंक बनता है विजेंता टैंक, जो मेन बैटल टैंक है, उसमें टाटा भी बड़ी हेल्प कर रहा है। जितनी आर्मी की यूनिफॉर्म है दैट इज ऑल मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। महिंद्रा, टाटा और आपके लार्सन टूब्रो, ये इनके लिए यूनिफॉर्म बनाते हैं। ये काम तो आप ही कर सकते हो। फाइन, देन व्हाट इज स्टॉपिंग यू? नाउ सी द अपॉर्चुनिटीज जो आपके सामने आने वाली हैं, एंड दैट विल टेल यू कि कितना आपके सामने आसमान खुला हुआ पड़ा हुआ है जो कि आप ग्रैब कर सकते हो। You shall be shocked to know, surprised to know when I show you the opportunities. You shall love to become an entrepreneur and create the employment opportunities and contribute in the Make in India concept of the Government of India. Now you see the opportunities. Very interesting. Yes, madam, please. Next slide. Now, what our PM says. One planning yojana is Pradhan Mantri Yuva Yojana. This is meant only for you. It will cater to you only. Anyone less than 30 years of age is supposed to be young man can apply for this scheme. जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ट्रेनिंग मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया will provide you training free of cost in any field in which you want to join. The government of India will give you training under this site. Open the site. जब ये साइट खोलोगे प्रधानमंत्री युवा योजना, आपको पूरी स्कीम आपके सामने आ जाएगी। अप्लाई फॉर अ स्कीम कि मुझे इस फील्ड में जाना है, so you shall be given training online or offline, whatever it is, as per the circumstances. The government shall invite you. This is being done with the help of the Ministry of Skill Development, जो कि गवर्नमेंट ने 2014 में क्रिएट करी थी। तो वो मिनिस्ट्री आपको ट्रेनिंग देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अवेल करिए। फाइन, वही मैं कह रहा था कि आपको मालूम होना चाहिए कि कंट्री में क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है और कहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। फाइन, आगे और बताऊंगा। आई विल नॉट टेक मच टाइम। तो जब मतलब आई विल टेक नॉट मोर देन 10 मिनट्स, बट यू शैल नो मेनी थिंग्स। ये स्कीम जो मैंने बताया प्रधानमंत्री युवा योजना के बारे में है। सेंट्रल स्पॉन्सर का मतलब होता है इट इज द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइन, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है एंड द स्कीम इज रन विद द हेल्प ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आप साइट पे जाएंगे, यू शैल गेट मेनी आइडियाज कि क्या मैं कर सकता हूं। दुनिया भर की स्कीम चल रही है, तो आप जब ओपन करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो माय एडवाइस इज यू एंटर द साइट, सी द आइडिया, जनरेट द आइडिया एंड गो फॉर द ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली। ये काम आप अभी शुरू कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट प्लीज। ये कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आपको पता ही है, मेक इन इंडिया। अभी गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फाइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साउथ कोरिया, नाउ दे हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट। They will take the total trade, जो हमारा पूरा ट्रेड होता है, जो अभी हम दोनों के बीच में सिर्फ $25 बिलियन है, that will be taken to around $50 बिलियन by 2030। वो कैसे होगा ना? साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी कंपनी हमारी कंट्री में है, सैमसंग है, LG है, फाइन, हुंडई है, KIA है, बड़ी बड़ी कंपनी आ रही हैं। पर इंडिया क्या करे? इंडिया ने बोला हम भी आपको एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा जो सर्विस सेक्टर है वो पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट है और हमारी कंट्री में सबसे बड़ा है सर्विस सेक्टर, जो नेशनल इनकम में मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करता है। व्हाट वी वांट दैट साउथ कोरिया शुड टेक टीचर्स फ्रॉम अस। जो हमारे आईटी सेक्टर के लोग हैं उनको लीजिए। वी शैल बी एक्सपोर्टिंग द सर्विस पीपल, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स फ्रॉम इंडिया टू साउथ कोरिया। यू कैन ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। ये कल की बात मैं बता रहा हूं आपको, ये कल की न्यूज है। आप ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। गो टू साउथ कोरिया, सेटल देयर। इट इज अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड यू कैन शार्पन योर कैरियर, डियर फ्रेंड्स। नाउ व्हाट इज मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया में क्या है कि आप आइए हमारी कंट्री में बनाइए। दिस इज नथिंग बट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये कंट्री है रशिया के साथ डील साइन किया। अब डील साइन क्या किया कि इंडिया विल मैन्युफैक्चर इन लखनऊ। यू शुड नो दैट हमारी कंट्री में तमिलनाडु और यूपी को डिफेंस कॉरिडोर डिक्लेयर किया गया है। जो भी डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो यूपी में होगी या तमिलनाडु में होगी। अभी लखनऊ में DRDO में एक अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है टू मैन्युफैक्चर ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका रेंज होगा 500 किलोमीटर्स। 500 किलोमीटर्स क्रूज मिसाइल जो कि जमीन के पैरेलल चलती है। ये मतलब क्रूज का मतलब होता है जो कि जमीन के पैरेलल चलती है और जो कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये बड़ी फास्ट है
तो ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, अगले साल तक ये डिफेंस मिनिस्ट्री को मिल जाएगी। इसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत हाई लेवल तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट माय डियर फ्रेंड्स। और एक चीज और है, अभी AK-203 मैंने बताया, AK-203 इज द मोस्ट एडवांस राइफल इन द वर्ल्ड दैट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर अगेन इन लखनऊ। फाइन, रशिया के साथ बना रहे हैं। 1.5 लाख राइफल हमारी कंट्री में हर साल बनेगी। जो इसके इनपुट होंगे वो स्टार्टअप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्टअप्स को बड़े हाई लेवल पे इनवाइट किया है कि आइए पार्टिसिपेट करिए, क्योंकि सारे काम हम खुद नहीं कर सकते, तो आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दैट इज व्हाई वी आर क्रिएटिंग 10 स्टार्टअप्स एवरी डे इन आवर कंट्री। यू सी, आपका फ्यूचर ब्राइट कैसे है, इसमें आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कुछ मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं। नंबर 1, साउथ कोरियन मेजर KIA, जिसकी गाड़ी ने आपकी जो क्रेटा को भी पीछे छोड़ दिया है, entered India in May 17 and made investment of $1 billion. Today it wants to make, अभी अनाउंस किया कि हम $2 billion और खर्च करेंगे, अपने प्लांट को एक्सपैंड करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि जो KIA मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसके इनपुट होते हैं उसके लिए दे डिपेंड अपॉन द स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज्यादा है। P-God may invest 7,000 crores in Tamil Nadu plant, ये भी एक्सपैंड हो रहा है। इंडिया और रशिया ने मिलके जो इनका चॉपर है, का चॉपर, तो उसमें दोनों मिलके इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बट ये हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चर होगा। दिस हेलीकॉप्टर विल बी मैन्युफैक्चर इंडिया इन इंडिया। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन सब में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसमें जो आपके स्मॉल के सेक्टर है, MSME सेक्टर है, या जो स्टार्टअप्स हैं, बहुत इसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये आपको मैंने अभी बताया, ये डील अभी लास्ट वीक साइन हुई है, लेटेस्ट। ये लखनऊ में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। बेस्ट राइफल इन द वर्ल्ड जो AK-47 है, उससे भी बहुत एडवांस है ये, और बहुत हल्की है, वेरी लाइट। इसको साफ करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसको खोलना है, साफ करना है, फिर जोड़ देना है। एनीवन कैन डू इट। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री, इज प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट फॉर रशियन सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट। और ये HAL में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? आप जैसे लोग, जो स्टार्टअप्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सप्लाइंग द कंपोनेंट्स फॉर रशियन सुखोई। ये हमारे पास भी हैं, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हमारे पास भी है। इंडिया बैंड 101 डिफेंस आइटम इंडिया ने बाहर से इंपोर्ट करने बंद कर दिए हैं। दीज कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन आवर कंट्री। टुडे यू शैल बी शॉक्ड टू नो, जितना रशिया एक्सपोर्ट करता है डिफेंस आइटम को, 60% इज टेकन बाय इंडिया। Today, India is becoming the exporter. India was the largest importer of the defense items till now. अब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया का इंपोर्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हम ये आइटम बैन करके अपनी कंट्री में बनाएंगे, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, टुडे द सऊदी अरेबिया इज नंबर 1 इन परचेजिंग द डिफेंस आइटम्स। इंडिया काफी नंबर पीछे चला गया, क्योंकि हमने अपने कंट्री में इसको बनाना शुरू कर दिया, एंड नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग इट। तो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस। जॉर्डन वांट्स टू बाय इंडियन हेलीकॉप्टर, कमो, नाउ वी आर मैन्युफैक्चरिंग हियर विद द हेल्प ऑफ रशिया, एंड आल्सो बाइंग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय DRDO। ये DRDO कभी खुद नहीं बनाता। तो व्हाट इज DRDO? एनीवन नोज व्हाट इज DRDO? इसका पूरा फॉर्म क्या है माय डियर फ्रेंड्स? बताओ दोस्तों, क्या मतलब है इसका, DRDO का? एनीवन? इसका पूरा फॉर्म क्या है? DRDO का पूरा मतलब क्या होता है? I will love participation from you, my dear friends. Yeah, please tell me. बताओ. Somebody raise hand. बताइए. बताओ ना, please tell me. अनिष्का बताओ. It is the Defense Research Development Organization. ये जो आपके, if you go to राष्ट्रपति भवन from विजय चौक, जब राष्ट्रपति भवन जाते हो ना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे साउथ ब्लॉक है, जहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री है। साउथ ब्लॉक के पीछे DRDO का दफ्तर है। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है। फाइन। तो नाउ दिस DRDO इज सप्लाइंग कंपोनेंट्स। पूरी कंपोनेंट कौन बना रहा है? DRDO कभी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, ये कंपोनेंट सप्लाई करते हैं आपके स्टार्टअप्स। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और ये अर्मेनिया और भी कंट्रीज ने इंडिया से रडार और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बात करी है। इनका डिमांड बढ़ रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी
तो डिमांड फ्रॉम द स्टार्टअप्स विल आल्सो इंक्रीज। डिमांड पे डिपेंड करता है कि कौन कितना आगे बढ़ेगा। डिमांड इज बाउंड टू इंक्रीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट वन प्लीज। हाँ, ये आपके लिए डियर फ्रेंड बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉक्सकॉन के बारे में सब जानते हैं, ये आईफोन का चिप बनाती है, एक ताइवानीज कंपनी है। तमिलनाडु में $5 बिलियन खर्च करने वाली है अगले 5 सालों में। ये जो कंपोनेंट आएंगे वो आप सप्लाई करोगे। फाइन, ये फॉक्सकॉन जो चिप बनाती है और कंपोनेंट अभी टाटा भी सप्लाई करने वाला है। टाटा विल डिपेंड अपॉन यू। ये कभी खुद ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं करते, जितने भी इनपुट्स हैं उसके लिए दे डिपेंड अपॉन दी अदर सप्लायर्स। फाइन, ऑन दी एलाइड इंडस्ट्रीज। माइक्रोमैक्स जिसका मोबाइल आता था, अब ये शुरू हो रही है दोबारा से, ये 500 करोड़ खर्च कर रही है तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश में। तो ये नया प्लांट सेटअप करेगी मोबाइल बनाने के लिए, तो एक और डिमांड जनरेट होने वाली है। देन मोटरोला एक अपना प्लांट सेटअप किया है चेन्नई के अंदर टू मैन्युफैक्चर रेजर 2। इसकी बहुत डिमांड हो रही है मार्केट में बिकॉज दिस इज 5G सपोर्टेड। टेस्ला अभी कंट्री में आई नहीं, आने वाली है क्योंकि टैक्स के ऊपर बात चल रही है, और ये अगर कंट्री में आ जाएगी, अगर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी तो ये डिमांड इसकी इतनी बढ़ जाएगी। और खास तौर से सेमीकंडक्टर की डिमांड, इसके बारे में आपको मालूम होगा कि सेमीकंडक्टर पूरे वर्ल्ड को चाइना सप्लाई करता था। चाइना विद व्यू टू क्रिएट शॉर्टेज इन द वर्ल्ड मार्केट, इसने सारे सेमीकंडक्टर्स को अपनी कंट्री में वापस बुला लिया। विद रिजल्ट पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो गई। मोबाइल फोन में सेमीकंडक्टर यूज होता है, और गाड़ी का जो डिस्प्ले बोर्ड होता है उसमें ये कंडक्टर लगता है। गाड़ी की सप्लाई स्लो हो गई। अगर आप आज जाएंगे शोरूम में, दे विल से प्लीज कम आफ्टर 6 months, क्योंकि ये कंडक्टर जो है ये मिल नहीं रहे। हमारी कंट्री में $26 बिलियन के कंडक्टर इंपोर्ट करते थे, हमने रोक दिया। अब गवर्नमेंट ने बोला कि हम चाइना को दिखाएंगे हम ये अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनवाइट किया कि प्लीज कम एंड मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर्स इन द कंट्री। 20 कंपनीज हैव एग्रीड, and within 2 years India may become the exporter of the semiconductors in the world। 20 कंपनी ने एग्री कर लिया है कि हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। उसमें एक कंपनी कौन सी है? फॉक्सकॉन, कि हम यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। तो गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, ये सब आपके लिए है। Amazon to set up its first device manufacturing plant to make Fire TV stick in Chennai। ये जितनी भी कंपनियां बता रहा हूं मैं आपको, ये सब डिपेंड करेंगी स्टार्टअप के ऊपर। तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो ये तो हो गया कि आपके आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या होने वाला है। आगे 2-3 स्लाइड में दिखाऊंगा जो कि यू विल फाइंड वेरी वेरी एनकरेजिंग। देन आफ्टर दैट आई विल सीक द क्वेश्चन फ्रॉम यू। नेक्स्ट प्लीज। अब गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट को बताता हूं। अब ये इतने गैप हैं, द गैप विल टेल यू कि कितनी डिमांड मार्केट में अभी होने वाली है। यू सी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर वी रिक्वायर, इतनी शॉर्टेज है, 103 मिलियन मैन पावर की शॉर्टेज है इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ऑटोमोबाइल में 35 मिलियन, फाइन। और आपका कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में 33 मिलियन। ये सारी शॉर्टेज हैं इन डिफरेंट सेक्टर। व्हेन आई से शॉर्टेज, सप्लाई इज लिमिटेड, डिमांड इज वेरी हाई। व्हेन डिमांड इज मोर, डियर फ्रेंड्स, व्हेन द डिमांड इज मोर योर फ्यूचर इज ब्राइट। डिमांड ज्यादा होगी तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। इन सारे सेक्टर्स में डिमांड ज्यादा है, इतनी शॉर्टेज चल रही है, तो कभी भी किसी भी सेक्टर में आप ग्रैब कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, एंड गारंटी है यू शैल शाइन इन फ्यूचर। अब ठीक है, आप यू वांट टू मेक एंट्री, यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है आपके लिए, फाइनेंस कैसे कर सकते हो अपने आइडिया को। अब इसके बारे में आपको मैं 3-4 स्लाइड में दिखाऊंगा, एंड यू शैल कम टू नो अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट प्लीज। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के आ रहे हैं, इनको मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, बट वी शुड बी रेडी फॉर दैट। नंबर 1 इज भारतमाला के बारे में कौन नहीं जानता? फाइन। पूरी कंट्री में रोड्स का नेटवर्क बिछ रहा है। फाइन। हमारे कंट्री में जो हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे अपने एक्सप्रेस वेज को, चाइना में जो एक्सप्रेस वे है only 1 lakh किलोमीटर, हमारी कंट्री में कितना है? इट इज अराउंड ओनली 1000 किलोमीटर। So under this scheme, we are going to construct highways and expressways. तो ये इतने बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिसमें you can participate. Fine. हाँ जी प्लीज। Good afternoon. Then other is सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला में क्या है? We are going to create many major ports. अभी हमारी कंट्री में 12 मेजर पोर्ट हैं,
So we are going to renovate the major ports. We are going to construct new ports, and the total number will be around 40 in the next 5 years. 40 बड़े-बड़े मेजर पोर्ट होंगे, जिसमें करीब 10 मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट होता है. तो जितने भी वहां पे पोर्ट्स हैं, उनको रेनोवेट कर रहे हैं. And dear friend, the government is trying to promote sea tourism. You can become travel agent. तो इन्वेस्टर चाहिए होते हैं, इन्वेस्टर those who will invest the money in your business. Yeah. So you have to share your business idea. अब मैं आपको And बताता while हूँ. sharing with your business idea, you will show how much growth is you are expecting and how much rate of return of investment you are supposed to give to the investor. Yes. Because whosoever is investing the money in your account. Yeah. Next please. Yeah. तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में तो आई विल नॉट स्पीक मच, बट द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज नॉट टोटल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट इज अराउंड 111 लाख करोड़. इतना इन्वेस्टमेंट कंट्री में हो रहा है, और ये मौका है आपके लिए. आप पार्टिसिपेट करो. चलो, आपको मौका मिला, यू वांट टू पार्टिसिपेट, बट हाउ? अगली 3 स्लाइड आपको ये बताएंगी कि हाउ यू कैन यूज दिस अपॉर्चुनिटी, डियर फ्रेंड्स. तो ये आप ये आगे बढ़ जाइए. ये तो अभी मैंने बताया इसके बारे में, और आगे ये गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम्स के बारे में. अब ये गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आपको बताना जरूरी है कि आप कैसे इसको अवेल कर सकते हैं. डियर फ्रेंड, वन इज कॉल्ड मुद्रा स्कीम. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मुद्रा? मुद्रा का पूरा मतलब क्या होता है? ये आप अवेल कर सकते हैं. एनी स्मॉल एंटरप्रेन्योर कैन अवेल दिस बेनिफिट फ्रॉम द बैंक. वन कैन गो टू एनी कमर्शियल बैंक, and every commercial bank is supposed to implement this scheme Mudra. It is called micro unit development refinance agency. क्या मतलब क्या हुआ? जो ये बैंक होगा आपको पैसा देगा, और जो रीफाइनेंस एजेंसी है बैंक को फाइनेंस करेगी. एंड देन उसकी 3 स्कीम है, शिशु, किशोर एंड तरुण. यू कैन अवेल द फंड्स. शिशु में 5 लाख तक है, अप टू 5 लाख. उसके बाद 5 से 10 लाख तक है. उसके बाद जस्ट ए मिनट. हाँ, किशोर में अप टू 5 लाख है, और तरुण में अप टू 10 लाख है. आप ये बेनिफिट ले सकते हैं. और वन थिंग मोर, व्हाइल अवेलिंग द बेनिफिट फ्रॉम ए बैंक, यू नीड नॉट मॉर्टगेज एनीथिंग. आपने कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है. नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड. जब बैंक आपको इतना पैसा देता है जिसके बारे में आपको मालूम ही नहीं है, you can avail the scheme under 3 categories, under Shishu, Kishore and Tarun. Fine. तो मतलब क्या है कि according to your requirement, you can go to the bank and avail the facility. Financial support मिलेगी आपको without any security. आपको कुछ भी mortgage नहीं करना है. Then other scheme is, ये एक 2021 की स्कीम है. Prime Minister announced the launch of Startup India Seed Fund. Seed Fund का मतलब होता है ना, तो स्टार्टअप का मतलब है कि आपके दिमाग में आइडिया आया, पर आइडिया को मार्केट करने के लिए मुझे पैसा चाहिए. दिस सीड फंड विल बी गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. उसकी साइट पे जाओ तो गवर्नमेंट ने इसके लिए 1000 करोड़ एलोकेट कर रखा है. यू कैन बी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट. एंटर द साइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. इसमें ये वाला फंड है, आपको फंड मिलेगा. और इसका मतलब क्या हुआ कि आपको गवर्नमेंट पैसा देगी आपके अपने आइडिया को मार्केट करने के लिए. और अगर आपका जो आइडिया है अनफॉर्चुनेटली अगर सक्सेसफुल नहीं होता, तो आपको ये पैसा वापस नहीं करना. दिस इज ए ग्रांट, नॉट ए लोन. यू कैन सीक दिस फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अवेल द बेनिफिट. एंड इन केस यू आर सक्सेसफुल, वेरी गुड. बट इन केस यू आर नॉट, देन दिस फंड इज नॉट टू बी गिवन बैक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस स्कीम के बारे में मेनी ऑफ यू मे नॉट नोइंग. ये स्कीम अभी शुरू हुई लास्ट ईयर जनवरी 2021 में. प्लीज अवेल दिस बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एक और स्कीम है स्टार्टअप इंडिया लॉन्च. नहीं, पिछला स्लाइड, लास्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट स्लाइड. हाँ, लॉन्च नहीं, इसके आगे नेक्स्ट वन, ये वाला. लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव इन द ईयर 2016. द आइडिया इज टू इंक्रीज वेल्थ एंड एम्प्लॉयबिलिटी बाय गिविंग विंग्स टू एंटरप्रेन्योर स्पिरिट्स. आपके अंदर जो एक पंछी है ना, उसको उड़ाने के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ने चालू की. The government gives the tax benefit to startups under the scheme. DIPP का मतलब होता है Department of Industrial Policy and Promotion, which is a department in the. You can enter the site, go to the site. जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इसके बारे में पूरा आइडिया मिलेगा.
कि कैसे गवर्नमेंट के फंड आप अवेल कर सकते हैं एट ए वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, मे बी 2%, 3%, even less than that. But the problem is many of us do not know what the government is doing for us. आइडिया आपके पास फाइनेंस गवर्नमेंट से, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं. Even from every public sector, you can avail this benefit. You can go and discuss with the bank. Every bank has now got the venture capital department. You can avail the benefit. तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, आपको बैंक वाले पैसा देंगे, आपके आइडिया अगर वर्केबल है तो आपको वो फाइनेंस करेंगे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड द प्राइवेट सेक्टर, ये तीनों मिलके आपके आइडिया को फाइनेंस कर रहे हैं. तो फाइनेंस में आजकल कोई दिक्कत नहीं, आइडिया में दिक्कत है. वो आइडिया आपके यहां से आना चाहिए. फाइन. Then one more scheme, Aspire, aims at increasing the employment, reducing poverty. I will be happy, dear friend, अगर ये जो साइट है मिनिस्ट्री ऑफ MSME, ये जो MSME की साइट है, आप एंटर करेंगे तो ये स्कीम के आपको दर्शन होंगे. गो टू दिस स्कीम. इस स्कीम में यू कैन स्टार्ट योर ओन माइक्रो यूनिट, मीडियम एंटरप्राइज और स्मॉल सेक्टर आप शुरू कर सकते हैं, स्मॉल यूनिट शुरू कर सकते हैं. जस्ट एंटर द साइट. आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको साइट में जाना पड़ेगा, लैपटॉप के सामने आपको 1 घंटा बैठना पड़ेगा. यू शैल सी दैट वर्चुअली एवरी मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी गवर्नमेंट में आज 72 मिनिस्ट्रीज हैं, 72 मिनिस्ट्री हैं. एवरी मिनिस्ट्री इज नाउ गिविंग यू फंड एज पर योर रिक्वायरमेंट. जो काम मिनिस्ट्री का है उस सेक्टर में मिनिस्ट्री फंड दे रही है आपको. दैट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. फॉर वर्चुअली एवरी इंटरेस्ट ऑफ yours, द गवर्नमेंट इज गॉट ए मिनिस्ट्री. गो टू द मिनिस्ट्री साइट. वहां पे आपको देखोगे कि गवर्नमेंट फंड दे रही है आपको. सिर्फ आइडिया आपके पास होने चाहिए, आपको गवर्नमेंट आराम से फंड देती है. नाउ द गवर्नमेंट इज एट योर डोर. नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड. ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ने क्रिएट करी आपके लिए, नॉट फॉर मी बट फॉर यू. दिस मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 2014 जस्ट टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट. आपका स्किल प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू किया. आपने करना क्या है, आपने एंटर करना है इनके साइट पे. ये जो मिनिस्ट्री की साइट है आपने एंटर करना है. एंटर करके यू विल कम टू नो अबाउट मेनी ट्रेनिंग स्कीम्स इन डिफरेंट सेक्टर्स. जब आप इसको खोलोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आइडिया मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर में मुझे जाना है. बट मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा. फाइन. इनके साइट खोलो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि गवर्नमेंट आपको ट्रेनिंग कौन कौन से सेक्टर में दे रही है, फ्री दे रही है. और अगर पैसा चार्ज कर रही है तो it is just nominal amount, 10,000, 5,000 rupees for 3 months, 6 months, 7 months. So one can avail this benefit. Not only this, one can go to even the National Small Industrial Corporation where Viva ma'am went with the students, and students were thrilled to see what the government was doing in NSIC. ये ओखला में है तो वहां भी जाके आपको बड़े आइडियाज मिलेंगे. Viva ma'am can tell about this. She went to the corporation, the Okhla इनका जो institute है, she went there with the student. Yes sir, we went with the students, approx 40 students we went. तो बात है कि आपको जाने पर बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड यू कम अक्रॉस मेनी आइडियाज. तो आपको लगता है कि मैं भी एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं. और एक मैं और रिकमेंड करूंगा, ये वाली साइट. डियर फ्रेंड, ये वो साइट है कंट्रोल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ IT. जब ये साइट पे जाएंगे, फाइन, तो आपको मिलेगा कि बिजनेस आइडियाज, ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देगी कि क्या क्या आप कर सकते हैं. इट विल शो यू द प्लेटफॉर्म ऑफ द आइडियाज. इसमें बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने आइडिया डिस्कस करते हैं. ई-बिज, दे डिस्कस आइडियाज. तो आपको यहाँ से बहुत कुछ मिलने वाला है. तो ये जो 2 मिनिस्ट्रीज हैं, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि इन दोनों में जाइए. तीसरी आप जा सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ द MSME, माइक्रो यूनिट की जो मिनिस्ट्री है, वहां पे एंटर कर सकते हैं. जब आप एंटर करेंगे तो यू विल कम टू नो अबाउट मेनी थिंग्स. You shall be shocked, surprised to know, यार हमें तो मालूम ही नहीं कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या कर रही है. What we require, what the government requires from you is an idea. And idea can come not only from yourself but even from a problem. अगर किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है तो that problem can generate one idea. कहीं जाने में, कहीं आने में दिक्कत होती है तो आपको आइडिया मिल जाएगा. आइडिया मिलता है प्रॉब्लम से. पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम भी आ गई, आइडिया भी आ गया, पर आइडिया के बाद कैसे मैं कन्वर्ट करूं? अब सी लॉकडाउन पीरियड, मास्क की डिमांड चल रही थी बहुत. याद करिए, मास्क मार्केट में, ब्लैक मार्केट में बिकता था. फाइन. द गवर्नमेंट हैड टू पुट दिस आइटम इन द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट. ये एसेंशियल कमोडिटी है, नोबडी कैन सेल बियॉन्ड ए प्राइस.
इतनी डिमांड बढ़ गई इसके मास्क की ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, लोगों ने अपने घरों में काम शुरू कर दिया. टुडे इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द मास्क इन द वर्ल्ड. 2 साल के अंदर जहां इंपोर्ट करते थे, लोगों ने घर घर में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया. अब इंडिया इनको एक्सपोर्ट कर रहा है. मेडिकेटेड, आजकल मेडिकेटेड मास्क भी आ गए हैं, उनकी भी एक्सपोर्ट चल रही है. N95 पता नहीं क्या क्या मास्क आ गए जो कि घरों घरों में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं. देन सैनिटाइजर्स, लोग घरों में इसको बना रहे हैं. इसकी भी डिमांड मार्केट में अनएंडिंग है. इसका डिमांड तो अब रहेगा, क्योंकि कंट्री के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड में वायरस कभी खत्म होने वाले नहीं. वी आर फेसिंग अराउंड 1 लाख वायरस एवरी डे. हवा में कम से कम 1 लाख वायरस है. तो ये जो डिमांड है इनकी तो परमानेंट रहने वाली है. डियर फ्रेंड, दिस इज मेंट फॉर द स्मॉल फार्मर्स. अच्छा, ये जो स्कीम है आप भी कर सकते हो. ये जो गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री है सीजीओ कॉम्प्लेक्स में लोधी रोड में, तो एक मिनिस्ट्री है द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. तो ये आपको फंड देती है. अगर आपने सोलर है, अगर आपने ये वाला काम शुरू करना है सोलर पैनल्स का, तो ये मिनिस्ट्री आपको पैसा देती है. उसके लिए आपको फाइनेंस करती है कि अगर इन केस यू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर इन द सोलर पैनल. इसके पूरे कंट्री में बहुत डिमांड बढ़ रही है और आगे इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होने वाला है. ये काम भी आप शुरू कर सकते हैं. तो यू आर सपोज टू एंटर द साइट ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ये लोधी रोड में है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है. उस मिनिस्ट्री की साइट पर जाएंगे तो आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट आपको ये मिनिस्ट्री कैसे आपको फाइनेंस कर रही है. आपने सिर्फ बनना क्या है, एंटरप्रेन्योर, कि भैया मुझे ये काम करना है. ये काम करोगे तो सपोर्ट करने वाले आजकल आपको लाखों हैं. पहले सपोर्ट करने के लिए यू यूज्ड टू लुक फॉर कि मैं कहां जाऊं, पर आजकल जो सपोर्ट करने वाले हैं खुद आपके पास आते हैं. भैया आइडिया दो, हमारे पास बहुत पैसा है, आप पैसा लो और काम करो, हम पैसा आपको देंगे. गवर्नमेंट, द प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल दी कमर्शियल बैंक्स, ये सारे के सारे आपको पैसा देने को तैयार हैं. बट प्रॉब्लम क्या है, आपको इसके लिए तैयार होना पड़ेगा. तैयारी एक तरफ से है, तैयारी दोनों तरफ से होनी चाहिए. फाइन. तो ये सारी स्कीम्स हैं जो मैंने आपको भी बड़ी कम दिखाई हैं. 72 मिनिस्ट्रीज हैं. अगर मैं दिखाने बैठूंगा तो दैट में टेक अराउंड 2 days. तो ये एक और स्कीम है विच इज मेंट फॉर डेयरी प्रोसेसिंग. डेयरी प्रोडक्ट उसकी प्रोसेसिंग के लिए भी गवर्नमेंट जो आपकी ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी फंड देती है. तो मतलब कहने का ये है कि एवरी मिनिस्ट्री इन द कंसर्न सेक्टर इज गिविंग यू फाइनेंस. यू कैन अवेल दैट. फाइन. अब ज्यादा दिखाऊंगा तो ये बड़ा बोरिंग हो जाएगा. तो मेरे ख्याल है कि आई हैव बीन एबल टू जनरेट दैट पैशन एंड फायर इन यू टू बिकम एंटरप्रेन्योर, इफ नॉट टुडे टुमारो. तो इन केस यू वांट टू बिकम टुमारो एन एंटरप्रेन्योर, देन टुडे यू मस्ट स्टार्ट थिंकिंग. दिस इज माय सिंसियर एडवाइस टू यू. So now I am available for the questions in case you want to raise any question or seek any clarification. Then my dear friends, you are most welcome. Yes, please. Any question, any doubt, any clarification, my dear friends, please ask me. I shall love to answer. You can speak out. You can unmute yourself सर आप and raise अपना any question. सर आप अपना नंबर दे दीजिए, आपका आइडिया आइडिया वगैरह के लिए हमारा आइडिया. नहीं, you are not audible. You can type the question, then somebody can read the question. Many hands have been raised. Yeah. Any question, please? I will be happy in case you raise questions. मेरा नंबर मैं आपको दे देता हूँ. Students, you can type your questions. आप क्वेश्चन टाइप कर सकते सर आप हैं. नंबर दे my दीजिए, number. आपका आइडिया शेयर. हाँ, my number is. You can note down. सर बहुत सारा आइडिया है, आप शेयर करेंगे. बोलिए सर. हाँ, मेरा नंबर ले लो. My number is 7838. एक मिनट सर. हाँ. 7838 36 1188. I will repeat the number. 7838 36 1188 is my number. सर आपका नाम क्या है? उमेश कालरा. बच्चे आपका नाम क्या है? मैं ऋतिक शर्मा. ऋतिक शर्मा. Of which course? BCA सेक्शन D. मैम BCA. BCA first year, second year. फर्स्ट ईयर. यस मैम. कोई बात Okay, नहीं, आप मुझे फोन Hrithik, करिए. you meet me. Sir, I have a campus. doubt. हाँ, प्लीज आस्क मी. पूछिए ना. मैम आपका नाम क्या है?
मेरा नाम डॉक्टर विभा है। ओके मैम आप मैम मिलेंगे कहाँ पे? क्वेश्चन आप मैनेजमेंट कॉलेज में ही मिलूंगी, आप आइएगा। ओके मैम, ओके। सर मैं आई आस्क वन क्वेश्चन प्लीज मैं पूछिए ना, एक नहीं दो पूछिए। सर एक्चुअली अगर जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो अगर वो एग्जीक्यूट करने पे अगर फेल हो जाता है, वो बिजनेस लॉस हो रहा है उसमें, हाँ, तो हम जो हमने लोन लिया है तो वो क्या हम मतलब अगर नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका मतलब? नहीं प्रॉब्लम आती, लोन लेके जब लोन लोगे ना तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो लोन में क्या होता है कि आपको विद इंटरेस्ट पैसा वापस करना पड़ेगा, पर डिपेंड करता है कि लोन आप लेते कहाँ से हो। ठीक है, ओ तो लोन कहाँ से लेते हो? तो अगर लोन लोगे तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो मिनिस्ट्री की जो मैंने आपको अभी बताया, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके साइट पे जाएंगे तो उसमें जो फीड इन्होंने जो सीड फंड शुरू किया है, सीड फंड, फाइन, यू एंटर यस द सर। साइट। उस सीड फंड में क्या होगा कि आपको पैसा वापस नहीं करना, वो गवर्नमेंट का ग्रांट है। ग्रांट का मतलब अगर आपका स्कीम नहीं चलता है, बिजनेस नहीं चलता है, तो आपको ये पैसा वापस नहीं करना है। तो गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट देने का एक प्लान बनाया हुआ है। तो जस्ट एंटर द साइट ऑफ दैट मिनिस्ट्री, सीड फंड के नाम से आपको मिलेगा। तो आप अवेल कर सकते हैं कि मुझे कितना फंड मिल सकता है, तो आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा। तो वो ग्रांट है, आपको वापस नहीं करना है। पर अगर आप बैंक से लोन लोगे या किसी प्राइवेट सेक्टर से लोन लोगे तो आपको वापस तो करना पड़ेगा। पर ये जो मैंने स्कीम बताई, मुद्रा स्कीम बताई है ना, MUDRA, तो हर बैंक वाला इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपको वहां जाके पैसा मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन दी कितनी रिक्वायरमेंट आपकी है, अप टू 10 लाख। उसके लिए आपको ब्रॉडगेज कुछ नहीं करना, आपने कोई सिक्योरिटी नहीं देनी है। ओनली बैंक सिक्योरिटी मांगते हैं, पर अंडर द मुद्रा स्कीम आपने कोई भी सिक्योरिटी इनको नहीं देनी है। आपको पैसा मिलेगा और ये पैसा आपको 1 घंटे में मिल जाता है। इन जस्ट 1 आवर ये पैसा मिल जाता है। सर बट तो हमें लोन, प्रेजेंट करना होगा ना कि हम कौन सा बिजनेस हाँ स्टार्ट कर रहे हैं आपको तो बताना पड़ेगा। तो आइडिया आपको जब होगा, तो जब आइडिया आपको ये सोचना शुरू करिए, तो अगर आपका आइडिया चलने वाला है तो बैंक वाले बड़े खुश होकर पैसा देते हैं। यस सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। थिंक अबाउट द आइडिया कि मैं क्या कर सकता हूँ, राइट इट डाउन, एक प्रोजेक्ट बनाओ। देन विद दैट प्रोजेक्ट यू कैन गो टू एनी वेंचर कैपिटलिस्ट। आपकी मीटिंग होगी, मीटिंग में जब बैठोगे तो वंस दे लाइक योर आइडिया, तो दे विल इमीडिएटली फाइनेंस योर आइडिया, और आपके दे विल बिकम शेयर होल्डर, कि भैया हम आपके शेयर होल्डर बन जाएंगे, हम आपकी कंपनी को सपोर्ट करेंगे। वो क्या करते हैं, ये जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना, तो आपके आइडिया को बेचते हैं मार्केट में, दे सेल इट, क्योंकि दे बिकम द शेयर होल्डर, देन दे मार्केट योर आइडियाज टू मेक योर कंपनी सक्सेसफुल। जब एक बारी आपकी गाड़ी पटरी पे आ जाती है तो देन दे विड्रॉ फ्रॉम दी कंपनी, बाद में विड्रॉ कर जाते हैं। तो आइडिया अच्छा होगा तो वेंचर कैपिटलिस्ट अगर लाइक करेगा तो आपको पैसा देगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, और 5 साल के बाद विड्रॉ कर जाएगा। तो आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं, बट द कंडीशन इज थिंक ऑफ एन आइडिया, जो आइडिया वर्केबल हो, यस दैट एनीवन कैन हैव। हर एक के पास आइडिया हो सकता है। सोचिए सोचिए, आपको आइडिया मिलेगा। सोचने से भगवान मिल जाते हैं, ये तो आइडिया है। यस सर। या थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग द क्वेश्चंस। एक और मिनट भी सर, ये और बता दीजिए कि वो की लिंक कौन सी है जिससे हम मतलब आइडिया ले सकते हैं? तो देखो, एक काम, आइडिया मिल सकते हैं कि हमें बिजनेस कैसे बढ़ाना है। देखो एक सिंपल आइडिया है, ये आपको मैंने बताया नहीं, जो मिनिस्ट्री ऑफ IT है, ई-बिज के नाम से उनकी एक पोर्टल है, वहां जाएंगे ना, तो जब आपने किसी मिनिस्ट्री की साइड में घुसना है, हमारी करीब 72 मिनिस्ट्रीज है भारत सरकार की, फाइन। कभी किसी मिनिस्ट्री में घुसना हो तो आपने क्या करना है, आप लिखो, मैं बताता हूँ आपको, www बताइए सर, एक मिनट सर। www जी सर। फाइन, www, उसके बाद जो मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है, उसमें क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, MICI, द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, MIC, द मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ठीक है, @gov का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, gov.in, या इसमें @ नहीं होगा, सॉरी, जैसे इट विल बी www, इसमें @ नहीं है, www. जैसे इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, दैट इज MIC.gov.in, IN मींस इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आप ये नहीं भी करेंगे, अगर मिनिस्ट्री का नाम टाइप नहीं भी करेंगे, अगर www.gov.in कर देंगे तो सारी मिनिस्ट्रीज का पूरा इसमें आ जाएगा, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सबकी मिनिस्ट्रीज की इसमें आपको साइट मिल जाएगी। तो अपनी चॉइस के हिसाब से
you enter into any ministry site. ई-बिज जो है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी का है, तो आप एक मिनिस्ट्री में जाओ तो गवर्नमेंट का जो जनरल पोर्टल है उसमें घुस जाओ तो सारी मिनिस्ट्रीज के आपको वो मिल जाएंगी, वेबसाइट मिल जाएगी www.gov.in, ये टाइप करोगे तो सारी मिनिस्ट्रीज का आपको साइट मिल जाएगा. जस्ट एंटर, पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. उसके बाद जब आपको आइडिया मिलेगा यू शैल बी वेरी हैप्पी, यार ये तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं. पैसा देने वाला तैयार बैठा है, फाइन, तो क्या दिक्कत है? और पैसा वापस नहीं मांग रहा वो आपसे, वो आपसे आइडिया मांगता है. फाइन. और कुछ? हाँ जी, बस इतना ही क्वेश्चन है. Yeah, Viva ma'am, any question from your side? And No, sir. I myself got so many informations from you. So अभी तो बताने के लिए इतना कुछ है, पर टाइम चाहिए, टाइम इतना नहीं होता. और बच्चे आल्सो दे गेट रेस्टलेस, बहुत हो गया सर, बहुत सुन लिया. इसीलिए मैं ज्यादा इनको बता नहीं सकता था. बताने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है. पर थोड़ा पेन लेना पड़ेगा इनको, आगे बढ़ना पड़ेगा, तो तब बात बनेगी, नहीं तो या. तो एक और हैंड रेज हुआ है. शी इज वन गर्ल इज रेजिंग हैंड. तो हैंड तो कई रेज हो रहे हैं, बट दे कैन टाइप आउट द क्वेश्चन एंड देन आई विल. yes, they can type and we can solve it even through mail also. Yeah. Thank you so much, sir, for. Yeah. पूछिए. You want to become an entrepreneur, but sir, we are afraid to take